Hi students, in previous period we discussed about the structure of flower topic, and while discussing that topic, yes, we discussed in detail about the parts of the flower, that is pedicel, thalamus, calyx, corolla, androecium, gynoecium and the modified one perianth. Now today we are going to discuss about a new subtopic, and the name of that new subtopic is inflorescence. What is the subtopic? Yes, inflorescence. Now what exactly is an inflorescence? So let us discuss about the definition of inflorescence here written on the board. Arrangement of many flowers on a spatial axis is called as an inflorescence. Now I am going to show you a real inflorescence. This is an inflorescence of gold moher flower, gold moher plant we can say. Here is the inflorescence with buds only, and this is the inflorescence with flowers as well as buds. Now according to the definition of an inflorescence, yes, arrangement of many flowers, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. So arrangement of many flowers on a spatial axis. See here, this is the spatial axis on which many flowers are naturally arranged. This is the natural bunch and this is the spatial axis, so called as peduncle, and on this axis many flowers are arranged, and this entire natural bunch of flowers is described as an inflorescence. Okay, so the stalk of the inflorescence is called as peduncle. Here at the base two fruits are also there. You might be able to observe two fruits. Yes, legumes are there. Green colored legume is there. Here is one on left side, on right side there is one legume. Are you able to observe the small legumes in green color? In green color, yes, these small legumes means the flower has been fertilized and has been converted into the fruit. So fruit level, older flowers, younger flowers, youngest flowers. Such is the arrangement type in case of gold moher. But that we will discuss later on in detail. But firstly about the definition of an inflorescence. Yes, many flowers, arrangement of many flowers on a spatial axis. And what is the name given to that spatial axis? Yes, peduncle. What's the term for that spatial axis of inflorescence? Yes, peduncle. Now, yes, after the definition, arrangement of many flowers on a spatial axis is called as an inflorescence. Yes, examples. Tuberose is also one of the example of an inflorescence. Gold moher is there. I have already shown to you. Then mustard याने राई मोहरी म्हणतो आपण मराठीमध्ये. That is also an example of inflorescence. Jasmine is also an example of inflorescence. We will discuss one by one. Then अब ये तो जरूरी नहीं है बच्चों कि हर प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस ही हो, है ना. जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस हो, नेचुरल बंच ही हो. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, यानी एक जगह पे एक ही फ्लावर लगता है. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर. उन प्लांट्स को हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर, सिंगल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली धतूरा फ्लावर दिखाया था. ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियसली धतूरा फ्लावर दिखाया था, तो आज भी दिखा रही हूँ. ये अनओपन धतूरा फ्लावर है, थोड़ा सा ओपन होना बाकी है. कल सुबह तक ये फुल्ली ओपन हो जाएगा. हाँ, वन मोर इज देयर. यस, वेयर फ्लावर हैज बीन ओपन. तो ये धतूरा फ्लावर जो है इसे कहते हैं हम सॉलिटरी फ्लावर. क्यों इसे हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं? क्योंकि ये सिंगली बॉर्न होता है ना, अकेला ही जन्म लेता है. ये एक स्पेशल एक्सिस पे बहुत सारे फूलों के साथ अरेंज नहीं होता है. तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं. रोज भी सॉलिटरी फ्लावर में आएगा, लोटस भी सॉलिटरी फ्लावर में आएगा, हिबिस्कस भी सॉलिटरी फ्लावर में आएगा. तो इस प्रकार से, क्योंकि ये धतूरा का फ्लावर सिंगली बॉर्न हुआ है, यहाँ किसी स्पेशल एक्सिस पे बहुत सारे फूलों के साथ अरेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं सॉलिटरी फ्लावर. सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन inflorescence and solitary flower. Yes, okay, then we will move forward. Now, yes, arrangement of many flowers on a spatial axis is an inflorescence. If flower is born singly, then it is called as solitary flower. Solitary flower का एग्जाम्पल रोज, हिबिस्कस, धतूरा ये लिख सकते हैं. इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल में ट्यूबरोज, गोल्ड मोहर, मस्टर्ड ये आएगा सब.
Then yes, there are two basic types of inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस के कितने मेन प्रकार होते हैं? 2 मेन प्रकार होते हैं। कौन से 2 मेन प्रकार होते हैं? एक है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। कौन से 2 प्रकार है? यस, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैंने पहले जो आपको दिखाया था इन्फ्लोरेसेंस, वो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? यस, वो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है। दिस गोल्ड मोहर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। पहला पॉइंट क्या है? द ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इनडिफाइनाइट। देखो, बायोलॉजी में इनडिफाइनाइट की भी एक लिमिट होती है। अगर आपको मैथमेटिकली पढ़ना है तो इनडिफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका कोई एंड नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन बायो में फिर भी उसकी एक लिमिट आती है आखिरी में। तो इनडिफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो जो पेडंकल जहाँ खत्म होता है, देखो यहाँ पेडंकल शुरू हुआ है, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया और पेडंकल यहाँ शुरू हुआ है और पेडंकल कंटिन्यू गया और अब ये है टिप ऑफ द पेडंकल। ओके, तो टिप ऑफ द पेडंकल जो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो इनडिफाइनाइट। अब इनडिफाइनाइट का मतलब यहाँ बायोलॉजी में क्या लेना है कि और नए बर्ड्स ऐड होने की गुंजाइश है। क्या मतलब लेना है इनडिफाइनाइट पेडंकल का? कि अगर प्लांट चाहे तो कुछ और बर्ड्स जो है वो ऐड कर सकता है और एंटायर इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ और बढ़ा सकता है। अब किस बात पे डिपेंड रहता है कि नेचर इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ बढ़ाए या नहीं बढ़ाए? बहुत सारे फैक्टर्स है बच्चों। अगर जमीन से पानी अच्छे से मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा है ना, सीजन है पॉलिनेशन का, तो ऐसे में नेचर डिसीजन ले सकता है पॉजिटिवली कि इन्फ्लोरेसेंस को और लंबा किया जाए। अगर एडवर्स कंडीशन है तो नेचर ये डिसीजन भी ले सकता है कि नहीं, अब इससे ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है। तो ये नेचर के हाथ में होता है। तो लेकिन नेचर ने इन्फ्लोरेसेंस का जो ये पेडंकल है, उसका जो टिप है, उसका एंड जो है, उसकी लिमिट जो है वो फिक्स नहीं की है। चाहे तो नेचर एक लिमिट तक ही सही पर और कुछ बर्ड्स इसमें ऐड कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ ब्रॉडली बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द पेडंकल इज डिफाइनाइट हियर, द ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इनडिफाइनाइट हियर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पेडंकल डजंट एंड इन अ फ्लावर। देखो यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ना, फोकस करके दिखाती हूँ आपको डायग्राम। यहाँ मैंने गोल्ड मोहर की डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ की है ना। 3D में आपको ध्यान में नहीं आया होगा अच्छे से, तो फिर 2D में अब एक बार देख लो। तो ये जो डायग्राम, ये फ्रूट्स है बच्चों, ये लीव्स नहीं है, इसके लीव्स कंपाउंड लीव्स होते हैं, ये उसके फ्रूट्स है, ये लेग्यूम्स है उसको लगे हुए प्लांट को, जो अभी मैंने आपको दिखाया है ग्रीन कलर के, और ये है फ्लावर्स। अब देखो ये पेडंकल है और ये पेडंकल आगे टिप मैंने खुला छोड़ दिया है, टिप पे कोई बड़ नहीं है। क्यों टिप पे क्यों बड़ नहीं है? अगर टिप पे बड़ रखेंगे तो वो इन्फ्लोरेसेंस वहीं पे एंड हो जाएगा और फिर नए बर्ड्स ऐड करने की कोई गुंजाइश वहां नहीं रहेगी। इसलिए टिप खुला छोड़ दिया है, और टिप खुला छोड़ दिया है, फ्री छोड़ दिया है। इसी का मतलब क्या हुआ कि पेडंकल डजंट एंड इन अ फ्लावर। और अनदर मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस इज द ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इनडिफाइनाइट। ओके, यहाँ ये एक्चुअल एग्जांपल जो मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस का दिखाया, इसमें उसका टिप इतना माइन्यूट है कि कितना भी जूम करके दिखाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि टर्मिनल एंड जो होता है पेडंकल का, वो टिप खुला है, मतलब वो कैसा है। यहाँ कोई बर्ड नहीं आएगी क्योंकि नए बर्ड्स अगर ऐड करने रहे तो नेचर लेटरल साइड में जो है वो बर्ड्स ऐड करेगा। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया, द ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इनडिफाइनाइट, यानी अगर नेचर चाहे तो और भी कुछ बर्ड्स ऐड कर सकता है। दूसरा पॉइंट, पेडंकल डजंट एंड इन अ फ्लावर, पेडंकल का टिप कभी भी फ्लावर बनाने की प्रोसेस में यूज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल मैनर। अब हो सकता है बच्चों की ये जो वर्ड है एक्रोपेटल, ये आपके लिए नया है, ये एक्रोपेटल वर्ड है, ये हो सकता है आपके लिए नया है, तो इसका मीनिंग भी समझा देती हूं मैं। नीचे के पॉइंट में लिखा हुआ है मीनिंग, द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल मैनर, इट मींस दैट लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर। ऑब्जर्व द डायग्राम, हियर दीज आर द ओल्डर फ्लावर्स and yes, they are having lower positions, and buds means the younger flowers. These buds, they are having yes upper position, so that's why the statement is written here, yes lower flowers are older and upper flowers are younger. ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी, एक्चुअल एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ। यहाँ भी देखो जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स लोअर साइड पे हैं,
है ना। ये ओपन फ्लावर्स जो है ये लोअर साइड पे है, और बर्ड्स जो है यानी कि यंग फ्लावर्स जिनको हम कह सकते हैं, ये बर्ड्स जो है ये कैसे है, ऊपर है यानी कि टॉप पे है। तो अपर साइड में ओल्डर फ्लावर्स और यस लोअर साइड में सॉरी ओल्डर फ्लावर्स और अपर साइड में यंगर फ्लावर्स है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोअर फ्लावर्स आर ओल्डर एंड अपर फ्लावर्स आर यंगर के बाद यस द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज फ्रॉम बेस टू अपेक्स। अब सीधी बात है, देखो यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। अब एक प्लेन में मैं 3 ये पकड़ती हूं, तो इसमें सबसे नीचे है फ्रूट, सबसे ओल्डेस्ट स्टेज, उसके बाद है फ्लावर, उसके बाद है लार्ज बर्ड और उसके बाद है स्मॉलर बर्ड। इसका मतलब कि कौन सा फ्लावर सबसे पहले खुला है, ये नीचे का फ्लावर सबसे पहले खुला है, थोड़े ही समय बाद पहले ये बर्ड खुलेगी, फिर और थोड़े समय बाद ये खुलेगी, फिर उसके बाद इसका चौथे नंबर इसका नंबर लगेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग निचले फूलों का पहले होगा कि ऊपर के फूलों का, है ना। कॉमन सेंस की बात है, निचला फूल जो है वो पहले खुलेगा, उसके बाद उसके ऊपर का, फिर उसके बाद उसके ऊपर का। यानी कि अगर हम साइंटिफिकली बताने जाए तो कैसे बताएंगे कि द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम बेस टू अपेक्स। फ्लावर का जो ओपनिंग होता है वो कैसे होगा, बेस टू अपेक्स होगा। यानी कि ये बड़ पहले खुलेगी, उसके बाद डायग्राम से समझा रही हूं मैं, ध्यान दो, ये बड़ पहले खुलेगी, उसके बाद ये बड़ खुलेगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर की बड़ खुलेगी। तो अभी आपको मेन सभी पॉइंट समझ में आए हैं कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंसेस पढ़ रहे हैं हम। यस, द ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इनडिफाइनाइट, है ना, और नए बर्ड्स ऐड हो सकते हैं।